very good afternoon to all of you. I'm Saintha from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be doing good. Today, we are here to talk about something which affects almost all of us. You know, to look beautiful and smart at all times is the quest of humans right from the beginning of civilization. We all want to look good, but then there are acne and other skin conditions which keep bothering us. So today, yeah, you got me right. Today, we are going to talk about acne, how to manage acne, how to prevent acne, etc., etc., and who all are prone of having acne. So this is something that we are going to talk today. Acne is a very common skin condition, a very chronic skin condition, I should say, and whether you are a teenager, adolescents, and even adults get acne. Many times it happens that one who had never ever had acne will have it when he or she is in their adult. The skin complaint is no stranger, you know, with acne, knowing the various types of acne and how to prevent it, how to take care of our skin after having acne, etc. To talk about acne management. As I said before, acne is something that keeps bothering most of us, and thus it's very important to understand how to deal with it. Acne management is very important. And today, soon, a very good skin expert in this regard is going to join us. Today, the skin expert is Dr. Swati Gupta from Indore. She is a renowned skin expert, and she is an MD dermatologist based in Indore, bringing over 5 years of rich experience to her practice, specializing in both medical and cosmetic dermatology. Dr. Gupta is particularly passionate about treating acne, pigmentation, anti-aging procedures, etc., allergy contact dermatitis. Her expertise extends beyond the clinic, with numerous articles published in both national and international journals. Those are very prestigious. Dr. Gupta is also a prominent figure on social media, using her platform to advocate for various dermatological issues, making her a trusted voice in this field. With a patient-centered, approach, she strives to provide comprehensive care, ensuring her patients feel informed and empowered throughout their skin treatment journey, skincare journey. A very warm welcome to you, Dr. Swati Gupta. Hi, thank you so much for the kind introduction. It's such a pleasure to have you today with us, doctor. And you know, acne is something which, you know, bothers almost all of us. We have gone through that phase. And acne is something which is just not restricted to us teens or, you know, adolescent age. Even we get adult acne, then people who have acne prone skin or oily skin, they are so prone and bothered with the acne. And acne is just not a skin condition. वो बहुत ज्यादा है इससे, मतलब वो हमारे स्किन पर भले ही दिखता है, लेकिन डीप डाउन वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे सेल्फ एस्टीम को, सबको बहुत लोअर डाउन करता है. कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे बहुत ज्यादा है. और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर. तो सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, एक्ने क्या है, कितने तरह के एक्ने होते हैं इससे? ओके, सो एक्ने, जिसे हम आम भाषा में पिंपल्स और मुहासे कहते हैं, बेसिकली इट इज अ डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ पाइलोसेबेशियस ग्लैंड. पाइलोसेबेशियस यूनिट दैट मीन्स द हेयर एंड द सेबेशियस ग्लैंड, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है. उसकी वजह से ऑन आवर फेस वी कैन सी द रेड बम्प्स. रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एक्ने, एक्ने बहुत तरह के हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर बात करें, तो अगर फोरहेड एक्ने है वो एक तरह का हो गया. अगर चीक्स पर एक्ने है वो एक हो गया. ऑन द जॉ आल्सो वी कैन सी एक्ने. देन देयर कैन बी ट्रंकल एक्ने व्हिच इज वेरी कॉमन इन समर्स एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड स्वेटिंग. देयर कैन बी बट एक्ने आल्सो. पेशेंट काफी परेशान रहते हैं बट एक्ने से. देन ऑब्वियसली कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड एक्ने होता है, जिसे हम एक्ने कॉस्मेटिका कहते हैं. एक्ने मैकेनिका होता है, जो कि प्रेशर की वजह से होता है. पेशेंट का टेंडेंसी, या हमको टेंडेंसी होता है हम ऐसे बैठे हैं, तो प्रेशर की वजह से भी कई बार एक्ने जनरेट होता है. देन देयर इज एक्ने एक्सकोरी. एक्ने एक्सकोरी मतलब हमने एक्सकोरिएट किया है. हमारा टेंडेंसी है कि हमें फेस पे कुछ भी टाइनी बम्प हुए, कुछ भी हुआ, तो हम उनको एक्सकोरिएट कर देते हैं. तो उसकी वजह से उन्हें पिगमेंटेशन तो डेवलप होता ही है, साथ साथ में वो ट्रिगर करता है कि नए एक्ने लीजन्स आए. तो देयर आर वैरायटी और स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एक्ने. बहुत सारे तरह के एक्ने होते हैं.
लगता सिर्फ एक्ने है, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट किस वजह से हो रहा है, एंड टू रूल आउट द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल आपने सही कहा कि रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आपने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कई बार प्रेशर एक्ने भी होते हैं। और ये मैंने भी नोटिस किया है, जब आप बहुत देर से ऐसे हाथ लगा के ऐसे बैठे हैं तो वहां वहां फिर हमें एक्ने होने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट से पहले कि एक्ने क्यों हो रहा है। अच्छा डॉक्टर, चूंकि आपने टाइप्स की बात की, कई बार हम देखते हैं कि आम भाषा में जैसे हम लोग कहते हैं ना, व्हाइट हेड हो रहा है, ब्लैक हेड हो रहा है, या फिर कुछ कुछ एक्ने होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, पस भर जाता है। कई बार हमको क्योंकि प्रेक करने की भी आदत होती है तो उसमें से पस निकलता है। बहुत ऐसे सिस्टिक एक्ने होते हैं बड़े बड़े जो बहुत पेनफुल होते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रेड्स हैं क्या ग्रेड्स, एक्ने के? यस यस यस। ओके। ये होते हैं, देर आर बेसिकली एक्ने के 4 ग्रेड होते हैं। एक्ने स्टार्ट होता है कॉमेडॉन से। कॉमेडॉन यानी कि ब्लैक हेड, आम भाषा में जो बोलेंगे ब्लैक हेड या व्हाइट हेड। तो कॉमेडॉन को भी हम ओपन कॉमेडॉन या क्लोज कॉमेडॉन बोलते हैं। ओपन कॉमेडॉन यानी कि ब्लैक हेड्स, एंड क्लोज कॉमेडॉन यानी कि जो हमारे व्हाइट हेड हो गए। बाकी वो होता है ग्रेड 1। दैट इज बिकॉज हमारा डेड स्किन इकट्ठा हो गया, वहां सीबम ऑयल इकट्ठा हो गया स्किन के नीचे, जो कॉमेडॉन बना देता है। ग्रेड 2 होता है पैप्यूल, जो टाइनी रेड बम्स होते हैं, दे कैन बी लार्ज ऑल्सो, जो बम्स होते हैं स्किन में, वो पैप्यूल जैसे प्रेजेंट करते हैं। दैट इज ग्रेड 2। फर्दर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेज है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेड 3 या ग्रेड 2 एक्ने हो जाते हैं। तो पैप्यूल इज ग्रेड 2, एंड ग्रेड 3 इज पस्ट्यूल, जिसमें पस आ जाता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि इची हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, आसपास सराउंडिंग स्किन को और रेड कर सकता है। देन ग्रेड 4 में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो गया, जो सेल्स बन गए वो फट जाते हैं स्किन के नीचे, जिसकी वजह से वो नोड्यूल या सिस्टिक लीजन्स बना देता है, जो कि काफी डिसफिगरिंग हो सकता है। फर्दर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, जो इतनी इजीली ठीक नहीं होती। तो देर आर बेसिकली 4 ग्रेड्स ऑफ एक्ने, जो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि कई बार एक्ने जो है वो स्कार्स छोड़ जाते हैं। मार्क्स तो छोड़ते ही हैं, मार्क्स तो हम देखते हैं कि इवेंचुअली वो ठीक भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन जो स्कार्स होते हैं, जो पिट्स होते हैं, गड्ढे जैसे बन जाते हैं, वो ठीक कर पाना मतलब विदाउट प्रोसीजर्स डॉक्टर के पास गए तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। और जिनको एक्ने बहुत होते हैं, दे विल एग्री विद मी, ट्रीटिंग एक्ने इज वन थिंग, ट्रीटिंग द एक्ने स्कार्स और मार्क्स इज अनदर, एंड दैट लुक्स लाइक द बिगर चैलेंज। तो That's another उस पर भी journey. हम आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन ये जो अलग अलग ग्रेड्स आपने एक्ने के बताए हैं, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, और उसके बाद किस तरह से वो आगे आगे प्रोसीड करता है, हमारी एक टेंडेंसी है हमारी सोसाइटी में कि हमें कुछ भी होता है, स्पेशली अगर स्किन पर हुआ है, तो हम सबसे पहले होम रेमेडी उस पर कुछ लगा लिया। ब्लैक हेड है तो हम कोशिश करेंगे खुद से उसको अगर ठीक कर सके, व्हाइट हेड है तो खुद ही से अगर व्हाइट हेड को हम स्क्वीज आउट करके अगर ठीक कर सके, कुछ लगा ले, मुल्तानी मिट्टी लगा ले, दही लगा ले, हल्दी लगा ले। हल्दी हम सबको बहुत पसंद है। Yes. बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं तो आई हैव सीन पीपल पुटिंग गार्लिक पेस्ट, putting n number of things on their pimples कि ये ठीक हो Baking जाए, soda, टूथपेस्ट लगा ले, toothpaste, what not. हाँ, व्हाट नॉट। तो हम अपनी स्किन पर इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है, जब पिंपल तो अलग चीज है, उसके जो स्कार्स रह जाते हैं या वो हमारी स्किन को जो नुकसान पहुंचा जाते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे ये तो बहुत कुछ और ही हम डील कर रहे थे, अब कहीं और ही पहुंच गए हैं। तो ये जो होम रेमेडीज, बिकॉज ये बहुत बहुत कॉमन है, मतलब मेरे ख्याल से 90 लोग जो है 100 में से वो सबसे पहले होम रेमेडी ही अपनाते होंगे। Absolutely. ये किस हद तक हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या ये मदद भी करते हैं एक्ने ठीक करने में? See, देर आर सर्टन होम रेमेडीज जो डेफिनेटली हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं, या एक्ने को भी कई हद तक ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू, उनका लिस्ट बहुत छोटा है। पर बाकी जो होम रेमेडीज है, जैसे मैंने बताया, आपने भी बताया कि बेकिंग सोडा लगा रहे हैं, टूथपेस्ट लगा रहे हैं, लेमन लगा रहे हैं, ये सबसे सिर्फ स्किन इरिटेशन बढ़ने वाला है। वो एक्ने को ठीक करने में इनका कोई एविडेंस नहीं है कि वो उससे ठीक होता है। इनफैक्ट कई बार हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो ये सब चीज यूज करके आए हैं और उनका एक्ने वर्स ही हो गया है, तो दे आर नॉट हेल्पफुल। हाँ, मुल्तानी मिट्टी जो है वो यूज कर सकते हैं एज अ होम रेमेडी, जो कि ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, एंड देयर बाय एक्ने को रिडक्शन थोड़ा हम देख सकते हैं, बट जस्ट प्राइमरी थेरेपी जैसे तो हम उसको भी यूज नहीं कर सकते।
अच्छा, कई बार ये भी लगता है जिनको बार बार एक्ने होता है कि हमारा चेहरा साफ नहीं है, हमारा चेहरा गंदा है, इसलिए बार बार एक्ने हो रहे हैं, देन दे कीप ऑन वॉशिंग देयर फेस अगेन एंड अगेन, कि ऑयल प्रोडक्शन भी इससे कम हो जाएगा तो एक्ने नहीं होंगे, चेहरा साफ होगा एक्ने नहीं होंगे, तो दे डोंट इवन पुट सम मॉइस्चराइजर एनी स्किन बैरियर, क्योंकि उनको लगता है कि मॉइस्चराइजर लगाएंगे और ऑयल प्रोडक्शन होगा और एक्ने होंगे। तो इस पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि कितनी बार चेहरा धोना चाहिए, मॉइस्चराइजर जरूरी है या नहीं, स्पेशली जो ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन है। क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए डॉक्टर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्वेंट, हम जितनी बार वॉश करते हैं, फ्रिक्वेंट वॉशिंग से ही हमारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स इज अ गुड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन वॉश आवर फेस। 3 टाइम्स से ज्यादा तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। आइडियल इज 2 टाइम्स। आप एक बार सुबह वॉश कर लीजिए, एक बार रात में सोते समय वॉश कर लीजिए। बाकी रिगार्डिंग मॉइस्चराइजर, ऑब्वियसली बिकॉज एक्ने हमारा बैरियर को भी खराब करता है, तो हमें एक अच्छे मॉइस्चराइजर में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जो हमारे जो सूदिंग हो, जो जेंटल हो स्किन के लिए, एंड एट द सेम टाइम हाइड्रेटिंग हो। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक्ने पेशेंट्स हैं उनको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में देर आर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, देर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, so they can try these kind of moisturizers instead of putting oil based moisturizers. So there are categories, उसके अकॉर्डिंग वो चूज करके एक राइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी क्या जरूरी है? क्योंकि कई बार जो एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग होते हैं जिन्हें एक्ने हो रहा है, वो कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी एक्ने, वी डोंट वांट टू लेयर इट अप विद सनस्क्रीन। देन कई लोगों को सनस्क्रीन का फील, क्योंकि कई बार सनस्क्रीन लगाने से स्वेटिंग होने लगती है, उनको लगता है कि ये वाइट कास्ट जो हो रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, या स्किन बहुत डल हो रही है, बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, ऐसे तमाम कंप्लेन सनस्क्रीन को लेकर है। तो क्या सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है, और अगर हाँ तो किस तरह का सनस्क्रीन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सनस्क्रीन लगाना तो डेफिनेटली नॉट जस्ट एक्ने, अदरवाइज हेल्दी स्किन में भी बहुत जरूरी है। हमें एसपीएफ तो हमेशा ही लगाना है। आइडियली आपको एक 30 to 50 एसपीएफ के बीच में यूज करना चाहिए। रिगार्डिंग अगेन ऑयल कंट्रोल की जो बात रही, सनस्क्रीन भी जेल बेस्ड आ रही है आजकल, तो वो आप जेल बेस्ड अगर सनस्क्रीन यूज करते हैं, उनमें भी आजकल तो पैक में मेंशन है कि वो जेल बेस्ड है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, सो दैट काइंड ऑफ सनस्क्रीन यू कैन यूज एंड इट विल नॉट ब्रेक यू आउट फर्दर। बाकी रिपीट करना इज अ क्रूशियल स्टेप। अप्लाइंग जस्ट वन टाइम इज नॉट इनफ। एक्ने की वजह से कई बार पिगमेंटेशन होता है। इफ यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन प्रॉपरली एंड रिपीटिंग इट प्रॉपरली, सो वो पिगमेंटेशन को फर्दर वर्स नहीं होने देता। एक्ने पेशेंट्स कई बार इतने सारे सीरम्स एंड ट्रीटमेंट DIY इज ऑल्सो आर टेकिंग, सो उसकी वजह से भी स्किन काफी सेंसिटिव हो गई है। तो अगर वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो सेंसिटिविटी को फर्दर एग्रेवेट नहीं करता है एंड इनकी पिगमेंटेशन को भी वर्सन नहीं होने देता है। बिल्कुल, तो सनस्क्रीन लगाना भी बहुत जरूरी है। तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन के तौर पे देखें तो क्लिंजर, लेकिन 2 से 3 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं, भले ही आपकी ऑयली स्किन हो, भले ही एक्ने होते हो। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एंड सनस्क्रीन अगेन आपकी स्किन टाइप, आपका रूटीन जो है उसके अकॉर्डिंग। सनस्क्रीन पर हम थोड़ी बात आगे भी करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से होम रेमेडीज बहुत कॉमन है, उसी तरीके से ओवर द काउंटर एप्लीकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत 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 कॉमन है। तो सबसे पहले पिंपल या एक्ने जब भी होता है, हम कुछ कुछ उस पे लगाते हैं, 1-2 दिन देखा नहीं वर्क कर रहा, तो हम फट से चले जाते हैं केमिस्ट शॉप पे और बोलते हैं कि भैया देखो कुछ हो रहा है, पिंपल हो गया है, कुछ दे दो। और अच्छा, ये जो टॉपिकल एप्लीकेशन मिलता है इनिशियली, ये वर्क्स लाइक अ मैजिक। तो हमें लगता है कि अरे वाह देखो 2 दिन में हमारा पिंपल बिल्कुल ठीक हो गया, एंड वी कीप ऑन यूजिंग इट। फिर कुछ हो रहा है, फिर लगा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि वी हैव गॉट एडिक्टेड टू द पर्टिकुलर क्रीम और ट्यूब वगैरह, और एक की जगह वो 3 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चेहरे पे बाल निकल रहे हैं। तो इतने हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और ये तकरीबन तकरीबन कई लोगों के साथ होता है जो एक्ने से जूझते हैं, वो इन प्रॉब्लम से भी जूझते हैं। ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सो पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, इंडिया में आप जब भी किसी स्किन कंसर्न के लिए केमिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं, तो वो आपको 100% स्टीरॉइड ही देने वाले हैं। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही होता है कि स्टीरॉइड या किसी ट्रिपल कॉम्बिनेशन, आजकल तो पेंटा कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसमें 5 ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स हैं, वन ऑफ विच विल बी स्टीरॉइड। तो वो स्टीरॉइड आपको देने ही वाले। स्टीरॉइड ऑब्वियसली इनिशियली, जैसे आपने बोला कि इनिशियली आपको बहुत अच्छा रिलीफ देंगे, 2-3 दिन में आपके एक्ने ठीक होने लग जाएंगे।
बट आपको आदत हो जाती है फिर उनको यूज करने की, बिकॉज वो आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट टेम्पररी दे देते हैं, तो आपको लगता है कि अरे इससे तो स्किन भी ग्लो हो रही है, फेयरनेस आ रही है। बट जैसे ही वो लॉन्ग टर्म उन्हें लगाना चालू करते हैं, उनका स्किन बैरियर खराब होता है, स्किन थिनिंग होने लगती है, ब्लड वेसल्स विजिबल हो जाती हैं। कई बार तो पेशेंट्स को ऑब्वियसली हाइपरट्राइकोसिस यानी फेस पे बाल आने लगते हैं, उनके फेस पे वाइट स्पॉट्स भी आ सकते हैं, और जो बैरियर है वो पूरी तरह खराब हो जाता है। कई बार उसे रिपेयर करने में ही हमें एक एक साल लग जाता है। एक्ने तो फिर बात की बात होती है ट्रीटमेंट। हाँ। तो स्टेरॉइड्स को डेफिनेटली यूज नहीं करना है। आप आजकल तो सब कुछ पता है, गूगल करके देख सकते हैं व्हाट इज स्टेरॉइड, व्हाट इज नॉट स्टेरॉइड व्हेन यू बाय सम क्रीम, बट स्टेरॉइड इज अ बिग 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 नो। कई बार हम डॉक्टर का 500 रुपए का कंसल्टेशन फीस बचाने के लिए स्टेरॉइड्स या इन टॉपिकल एप्लीकेशन के झांसे में आ जाते हैं, और फिर डॉक्टर स्वाति जैसे कह रही है ना कि बाद में जब आप डॉक्टर के पास, क्योंकि जाना ही पड़ता है, कंडीशन इतनी स्किन की खराब हो चुकी होती है, तो तब वो एक्ने तो एक दूसरी ही प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन को ठीक करने में बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए प्लीज सेव योर मनी, सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेव योर सेल्फ, सेव योर स्किन, सेव योर हेल्थ बाय going to the right person, going to the right expert, which is a qualified dermat, in case you have anything to do with your skin. कुछ भी अगर आपको लग रहा है स्किन पे ठीक नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, ये बहुत जरूरी है। स्किन पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, कोई दूसरा ऑर्गन होता है तो हम ऐसे भागते नहीं है केमिस्ट शॉप की तरह, अरे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, हमें चेस्ट पेन हो रहा है, कोई दवाई दे दो, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। स्किन को भी उतना सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन इज अल्टीमेटली द मिरर ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। अच्छा, ओवर द काउंटर मेडिकेशन की भी हमने बात की। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आजकल है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड दे कीप ऑन तो they have almost quick fixes for almost everything, especially skin related चीजों के लिए उनके पास बहुत सारे quick fixes होते हैं। Then because they are also making money out of it, so they are endorsing a lot of products, a lot of brands, तो वो प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था एक सवाल के जवाब में, कि आजकल हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव इस वजह से भी हो रही है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। So we end up buying like 50 bottles for in the name of skincare routine. So we are following like 7-step skincare routine, और इतना कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ, हर 2-3 महीने में हम चीजें बदल भी देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी बदल रहे हैं। अच्छा, ये नहीं काम कर रहा, 2 महीने बाद कोई और प्रोडक्ट कुछ नया मार्केट में आ गया। तो ये जो टेंडेंसी है जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इज इट अ सेफ प्रैक्टिस टू डू, या इसके भी वो होते हैं साइड इफेक्ट्स? बेसिक हमारा जो सीटीएम है कि क्लेंस करना है, हमें मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन लेना है, हम 1-2 एक्टिव यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। के एक्ने है तो हमने एक पर्टिकुलर कोई सीरम में भी सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया, या पिगमेंटेशन है तो हमने ग्लाइकोलिक एसिड, प्रोबेबली एजलिक एसिड स्टार्ट कर दिया, या रेटिनॉल्स हमने स्टार्ट कर दिए। बट लेयरिंग टू मच ऑफ द प्रोडक्ट कैन फर्दर इंक्रीज योर सेंसिटिविटी, एंड काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि पेरी ओरल डर्मेटाइटिस आजकल बहुत कॉमन है। लिप्स के पास में आपको एक्जिमा जैसा होने लग जाता है, वो होने लगता है। एंड इतने सारे जो आप लेयर यूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली स्किन में अब्सॉर्ब ही नहीं होने वाला है, तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर मनी। एंड आप जो ये ओटीसी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इतने लेस कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो कई बार वो एज ट्रीटमेंट पर्पस सॉल्व नहीं करते, बेसिक स्किन केयर में मे बी हेल्प कर दे, बट ट्रीटमेंट में पर्टिकुलरली वो इतने हेल्पफुल नहीं होते। रिगार्डिंग सीरम्स, उनका परसेंट होम बेस्ड सीरम्स होते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। आजकल विटामिन सी पर्टिकुलरली सीरम बहुत ट्रेंड में है, जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए है ही नहीं, बट पेशेंट्स ब्लाइंडली उनको यूज कर रहे हैं। जिनको टेंडेंसी होती है एक्ने डेवलप करने की, उनको ये अवॉइड करना चाहिए, बट उनको लगता है कि सिर्फ ग्लो आएगा या ठीक हो जाएगी उनकी प्रॉब्लम, तो एवरीबडी इज यूजिंग विटामिन सी सीरम, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सीरम्स आल्सो। सो स्किन केयर हैज टू बी वेरी सिंपल, वेरी मिनिमल। आप अपने कंसर्न के हिसाब से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में जो आपको सूट कर रहा है वो प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, योर एफर्ट्स एंड योर मनी। अच्छा डॉक्टर, कई बार होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी स्किन के हिसाब से, खास तौर पे क्योंकि हम एक्ने मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, एक्ने बार बार होते हैं, तो हमको कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन सा क्लेंजर, कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए? डू यू एडवाइज टू गो एंड चेक विद अ क्वालिफाइड डर्मैट टू हेल्प इन दिस? ये भी हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो डर्मेट्स हैं वो आपको एक कस्टमाइज आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रूटीन आपको सेट करके दे सकते हैं, वेदर यू नीड अ क्लेंजर और यू नीड अ फेस वॉश और व्हाट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यू करेंटली यू आर रिक्वायरिंग।
एंड एक पेशेंट को ये भी रहता है कि बस एक क्रीम बता दीजिए जो हम हमेशा यूज कर सकें, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो क्योंकि स्किन चेंज होती रहती है, वेदर के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड कई बार हम एक प्रोडक्ट को लंबे समय यूज करते हैं, तो आफ्टर अ वाइल आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आप जिस वजह से वो यूज कर रहे थे वो अब वो इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये भी है कि आप अगर उनके पास जाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपको कस्टमाइज करके देंगे आपकी स्किन नीड्स एंड कंसर्न के अकॉर्डिंग, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी। एंड ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और साइड इफेक्ट्स के चांसेस भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। जब एक पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर एक्ने के साथ, तो क्योंकि आपने बताया अलग अलग ग्रेड्स है, अलग अलग टाइप्स है, और ग्रास रूट पता करना, रूट कॉज क्या है ये पता करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में क्या कोई टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं, या जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, नोइंग देयर हिस्ट्री एटसेट्रा, यू फाइंड आउट कि ये क्या है, क्यों है, एंड देन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट? एक्ने के लिए कोई लैब टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अंटिल इट इज हार्मोनल एक्ने, फिर भी हम लैब टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल एक्ने क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमें क्या मेडिकेशन देना है एंड क्या प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट को क्विक रिलीफ दे सकें। क्योंकि एक्ने का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है एक्ने स्कार्स एंड पिगमेंटेशन। उनका ट्रीटमेंट काफी लंबे समय चलता है, और एक्ने स्कार्स को हम 100% ठीक भी नहीं कर सकते। इसलिए एक ये है कि अगर वो प्रॉपर ग्रेड की बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम राइटली ट्रीटमेंट मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एक बार मान लीजिए कि पता चल गया कि क्या रूट कॉज है, तो ऑफ कोर्स अवॉइडिंग और रूट कॉज को ठीक करना तो एक इशू है ही। दूसरा कि एक्ने ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? सो एक्ने ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर सिर्फ ग्रेड 1 एक्ने है, कॉमेडोनल एक्ने है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड ही है, तो डेफिनेटली हम सैलिसिलिक एसिड जेल्स या सीरम्स हैं, हम उनको ट्राई कर सकते हैं। उनके यूज से वो प्लॉग्स जो पोर्स हैं वो अनक्लॉग हो जाएंगे, तो वो बेनिफिट हमको मिलेगा। बाकी अगर काफी ज्यादा व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड्स तो फिर भी इजिली रिमूव हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स के साथ प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, वो इतनी इजिली रिमूव नहीं होते, तो हम इन क्लिनिक उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर अगर हमको वही जिट्स हैं जिन्हें हम पैप्यूल या पश्यूल बोल रहे हैं, उसके लिए हमें ओरल मेडिकेशंस भी स्टार्ट करने होते हैं। हम कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ रेटिनॉल बेस्ड मेडिकेशंस होती हैं, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को। अगर पश्चुलर एक्ने होते हैं तो मेरा गो टू ड्रग होता है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, मैं उनको देना प्रेफर करती हूँ। अगर सिर्फ पैपुलर एक्ने है तो प्रोबेबली सैलिसिलिक एसिड वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन और क्लेंजर तो हमेशा रूटीन में रहेगा, नो मैटर आपका क्या ग्रेड होने वाला है। ग्रेड 4 एक्ने के लिए जिसमें सिस्टिक लीजन्स या नोड्यूलर लीजन्स आ गए, कई बार हमें इंजेक्टेबल्स भी देने होते हैं। जहां पर लीजन है हम वहीं पे उन्हें इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि फर्दर स्कारिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और ऐसे ही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ट्रीटिंग एक्ने इज वन थिंग, ट्रीटिंग एक्ने पिगमेंटेशन और स्कार्स वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसके लिए किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं? बिकॉज आई एम श्योर दवाइयों से वो नहीं ठीक हो पाते होंगे स्कार्स एंड पिट्स, तो क्या प्रोसीजर्स? हाँ, एक्ने स्कार्स कोई मेडिकेशन से नहीं ठीक हो सकते। इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हमें लेने होते हैं। बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हैं केमिकल पील से। केमिकल पील एक बहुत ही सिंपल ऑफिस प्रोसीजर है, आधे घंटे में पेशेंट फ्री हो जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। देन देयर आर प्रोसीजर्स लाइक माइक्रो नीडलिंग, जिन्हें हम कहते हैं MNRF और प्लेन माइक्रो नीडलिंग। उससे क्या होता है, वो आपके फेस पे जब करते हैं तो कोलाजन इंडक्शन होता है, कोलाजन रीमॉड्यूलेशन होगा, तो आपके एक्ने स्कार्स में बेनिफिट होता है। Again, we can go for lasers like fractional CO2, erbium YAG laser also we have. And आजकल एक US FDA approved acne particularly acne के लिए एक लेजर है जिसे हम एक्योर लेजर कहते हैं। वो अभी रिसेंट US FDA अप्रूवल उन्हें मिला है, तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रोसीजर्स हैं जिससे ट्रीटमेंट हो सकता है, बट देन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम बोलते ही हैं। तो क्या करें, एक तो कि एक्ने ही ना हो, और हो भी जाए तो एटलीस्ट हम स्कार्स और मार्क्स से किस तरह से बच सकते हैं डॉक्टर, क्या करें? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अर्ली ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। आप जितनी जल्दी एक्ने को ठीक करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपको एक्ने स्कार ही डेवलप ना हो। तो होम रेमेडीज एंड डिफरेंट OTCs को ना फॉलो करते हुए आप अपने डर्मेट के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर एक रेजिम फॉलो करवाएंगे, आपको एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आपके एक्ने जल्दी ठीक होंगे, तो आपको एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन होने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फर्दर एक्ने को उतनी सिवियरिटी से नहीं होने देता, वो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो डाइट का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो एक तो है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, दूसरा कि हमें क्या कुछ अवॉइड भी करना है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि तुम बहुत तला भुना खा रहे हो, बहुत स्पाइसी खा रहे होगे, या बहुत शुगरी खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं ले रहे हो, तो क्या ये सब अवॉइड करना होता है? व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू इंक्लूड इन आवर मील, डॉक्टर? सो एक्ने में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंटेनिंग फूड जो रहता है उसे अवॉइड करना होता है, जैसे कि ब्रेड्स हो गए, चिप्स हो गए, ये सब हमारी शुगर लेवल एकदम से बढ़ा देते हैं। तो हमें ये बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, बेसिकली फास्ट फूड है, वो हमारी शुगर लेवल एकदम से बढ़ाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स होता है उनका, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हम लो ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो गए, उनको ले सकते हैं। शुगर, ऑब्वियसली शुगर इज बिगेस्ट एनिमी फॉर नॉट जस्ट एक्ने, फॉर योर स्किन एजिंग ऑल्सो, तो शुगर को तो आपको अवॉइड करना ही है। डेयरी, पर्टिकुलरली नॉट द होल डेयरी, काउस मिल्क का एविडेंस है कि काउस मिल्क अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको एक्ने ब्रेकआउट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हाउएवर आप चीज एंड योगर्ट, कर्ड ये ले सकते हैं, बट इन मॉडरेट क्वांटिटी, वो आपको एक्ने जिट्स या आपको ब्रेकआउट्स नहीं होने देंगे। बट काउज मिल्क, शुगर एंड फास्ट फूड डेफिनेटली अवॉइड करना ही है। ऑयली फूड से भी एकदम से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही बढ़ता है, इसलिए हम उन्हें अवॉइड करने का बोल रहे हैं, पर ऑयल पर से का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है एक्ने पर। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं डॉक्टर स्वाति, जो हमसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन सवालों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन जय का एक सवाल है कि हाउ डज सन एक्सपोजर अफेक्ट एक्ने एंड व्हाई इज सनस्क्रीन सो क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग इट? ओके, सो सन एक्सपोजर या कई बार हम हीट की बात करें, हीट से भी हमें न्यू ब्रेकआउट्स आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें सन एक्सपोजर को मिनिमाइज करना चाहिए। एंड वहीं एक रोल आता है सनस्क्रीन का, कि अगर आप, बिकॉज हम सन एक्सपोजर को कंप्लीटली तो अवॉइड कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हम सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें, एक मॉडरेट, एक 2 फिंगर लेंथ जो रिकमेंडेड है उसमें अप्लाई करें। फेस एंड नेक बोथ शुड बी कवर्ड बाय योर सनस्क्रीन, सो दैट कैन दैट्स हाउ वी कैन मैनेज द एक्ने। फिजिकल जो बैरियर्स होते हैं सन से बचने के, चाहे वो हैट हो, कैप हो, कॉटन स्कार्फ्स हो, मास्क हो, सन ग्लासेस एक्सेट्रा, वो भी क्या हेल्प करते हैं? डेफिनेटली फिजिकल बैरियर बिल्कुल हेल्प करते हैं। जैसे एसपीएफ होता है वैसे यूपीएफ भी होता है, यूपीएफ क्लोथिंग भी आती है जो हमें अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन देती है। तो हम इफ नॉट यूपीएफ क्लोथिंग, हम नॉर्मल क्लोथिंग भी अगर फुल स्लीव्स क्लोथ पहने हैं, एक हैट पहने हैं, कॉलर्ड नेक वाले क्लोथिंग हमने वेयर कर रखा है, तो वो भी काफी हद तक हमें प्रोटेक्शन देती है। एंड ऑब्वियसली सनस्क्रीन तो फिर आती ही है, बट फिजिकल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट ऑलवेज फॉलो। एक बहुत कॉमन सवाल जो ज्यादातर हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि एक्ने प्रोन स्किन है तो किस तरह का सनस्क्रीन यूज करें, क्या क्या हो सनस्क्रीन में, लेते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखना है? ओके, सो एक्ने प्रोन स्किन के लिए जो हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए उसका एसपीएफ होना चाहिए 30 to 50 एसपीएफ के बीच में। उस पे लेबल होना चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक, जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड, ये 3 चीजें बस आपको देखनी है, और आप अपने सनस्क्रीन को बिंदास यूज कीजिए, वो आपको कोई ब्रेकआउट्स नहीं देने वाले। और ऐसे ही जो सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि आजकल सेंसिटिव स्किन वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक्ने बहुत इजीली होते हैं, थोड़ा सा धूप में गए, कुछ हुआ, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, वो किस तरह का सनस्क्रीन यूज करें? सेंसिटिव स्किन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड लगाया है, या कई बार उनकी नेचुरली सेंसिटिव स्किन है, तो वो कोई प्रोडक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते। उनके लिए भी हमारा फर्स्ट चीज रहता है कि पहले वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद वो एक सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन अगेन वो एक कोई लोशन बेस या क्रीम बेस लगा सकते हैं, बट फॉर्मुलेशन जो होना चाहिए वो जेल या वाटर बेस्ड होना चाहिए। रीएप्लीकेशन इज अ मस्ट। ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको फिर डिसाइड करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन सा सनस्क्रीन ठीक जाएगा। हो सकता है एट अ फर्स्ट गो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट करें, वो सनस्क्रीन भी आपको ठीक ना लगे, बट बिलीव मी देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर एवरी स्किन टाइप। तो आपको मे बी 2-3 ट्राई करना पड़े, पर एक परफेक्ट सनस्क्रीन डेफिनेटली आपके लिए भी निकल के आएगा। बिल्कुल। और जब आपको आपका परफेक्ट सनस्क्रीन मिल जाएगा ना, एज पर योर स्किन टाइप, जिसका फील भी अच्छा हो, जो पॉकेट पे भी ठीक आपके बैठे, और आपको उसके लग रहे हैं कि हाँ हाँ इससे मुझे फायदा हो रहा है, देन यू स्टार्ट लविंग इट। एंड सनस्क्रीन आल्सो वर्क्स एज एन एंटी एजिंग क्रीम एज वेल, राइट डॉक्टर? एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली। यूवी डैमेज का बेसिक रीजन ही यही है, हम यूवी डैमेज इतनी बार हम एडवोकेट कर रहे हैं सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज सन एक्सपोजर कैन एक्चुअली फास्टन योर एजिंग।
सो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी एजिंग उतनी फास्ट नहीं होती, क्योंकि कोलेजन डैमेज नहीं होता, एंड ऑल्सो आप टैनिंग एंड फर्दर जो कैंसर्स एंड ऑल वो सारे रिस्क से भी आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। अच्छा, शुरू में भी हमने बात की डॉक्टर कि एक्ने जो है ये स्किन सिर्फ अपीयरेंस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, डीप डाउन ये हमारे सेल्फ स्टीम को, कॉन्फिडेंस को, सबको बहुत हिला के रख देता है। कई लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्ने के साथ एक और समस्या ये है कि एक बार हुआ बार बार हो रहा है, एक्ने प्रोन स्किन है, बार बार होगा। टीनेजर्स को, एडोलेसेंस में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, ऐसे में अगेन इट्स वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट सबको ही होते हैं, अगर सबको नहीं तो काफी लोगों को तो होते ही हैं। तो ऐसे में डॉक्टर इस तरह के पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो कितना जरूरी है उनको काउंसल भी करना? तो किस तरह से वो हमारे सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो शायद अपने टीम्स में है, जिन्हें नए नए एक्ने होने शुरू किए हैं, दे आर गेटिंग रियली डिप्रेस्ड कि अरे अभी तो प्रॉम पे जाना है, फेयरवेल है, और यू नो आई एम नॉट रेडी, माय स्किन इज नॉट रेडी, क्या कहना चाहेंगे उनको? एक्ने के साथ प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्ने इज नॉट क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज एक्ने ट्रीट कर दिया तो लाइफ में आपको कभी एक्ने नहीं उठेंगे। बट ऑब्वियसली विद राइट स्किन केयर रेजिमेन और राइट प्रोडक्ट्स आप अपने एक्ने का सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, एक्ने को क्लियर कर सकते हैं। बट बिकॉज एक्ने एक मल्टी फैक्टोरियल है, कारण की वजह से हो रहा है। It can be because of stress, it can be because of your hormonal imbalance, diet, sweating, sun, and the lots of product which you are applying. So acne एक multifactorial problem है, तो एक multidisciplinary approach की जरूरत पड़ती है। रिगार्डिंग जो बार बार हो रहे हैं, कई बार होता है हमें एक लॉन्ग ट्रीटमेंट उन्हें देना होता है, मेंटेनेंस थेरेपी में उन्हें पुट करना होता है। एक्ने के साथ में डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, पेशेंट्स को डिप्रेशन हो रहा है, बिकॉज वो एक दिखने की बात आ जाती है, एक पेशेंट का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है अगर पेशेंट के फेस पे इतने एक्ने हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो है नॉर्मल वो डिस्टर्ब होती है, उनको पिगमेंटेशन हो गया, उनको स्कार्स हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल बर्डन पेशेंट की वजह के ऊपर आता है, और कई बार पेशेंट इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बट बिलीव मी, अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से लेते हैं, विच कैन बी लॉन्गर, मे बी 6 months और अ ईयर, आपके एक्ने बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं, कई बार परफेक्टली आपकी स्किन हो सकती है। बट ये हम फिर भी क्लेम नहीं कर सकते कि आपको लाइफ में कभी दोबारा एक्ने नहीं उठेंगे। तो बिल्कुल एक्ने एक ऐसी चीज है, और कई बार तो आजकल तो इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं कि जिन्हें टीन्स में भी एक्ने नहीं हुए, लेकिन अब व्हेन दे आर एन अडल्ट उन्हें एक्ने हो रहे हैं। तो ये एडल्ट एक्ने भी आजकल बहुत हो रहे हैं डॉक्टर, उसकी क्या वजह है? अडल्ट एक्ने बेसिकली आपको 25 के बाद कभी भी एक्ने होंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अडल्ट एक्ने। हमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ टीन्स में एक्ने होंगे बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस, बट एक्ने हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में भी होता है। आप मेनोपॉजल की तरफ जा रहे हैं तो भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनकी वजह से एक्ने आपको कभी भी हो सकता है। एंड अगेन स्ट्रेस लेवल आजकल इतना हाई है, हम इतना डाइट चेंजेस भी बहुत हो गए, हम फास्ट फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, हमारा शुगर कंटेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, एंड लेयरिंग अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, जस्ट बिकॉज हमने सोशल मीडिया पे देख लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है एक नॉर्मल स्किन में एक्ने होने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रिवेंशन क्या क्या लेना है, और हो गया है तो क्या क्या करना है, इस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। अनिता हमारे साथ है, हमारी एक व्यूअर, और उनका सवाल है, What should I do if I experience breakouts or irritation after using sunscreen? ओके, सो आप एक, अगर आपने सनस्क्रीन ले लिया है और आपको वो इरिटेशन कर रहा है, तो पहले आप एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। लेट इट सिट ऑन योर स्किन फॉर 2 to 3 minutes, एंड आप फिर आप अपना मॉइस्चराइजर लगाना ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका इरिटेशन कम हो जाए। अच्छा, सनस्क्रीन को लेकर क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में रहता है, और आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन इन योर डेली स्किन केयर रूटीन, मतलब वो रूटीन में आपके शामिल, आपके बिहेवियरल पैटर्न में शामिल होना चाहिए, इतना जरूरी है। तो ऐसे में आपने ये तो बताया कि किस तरह का सनस्क्रीन लेना है, स्पेशली अगर एक्ने प्रोन स्किन है, लेकिन बाहर निकलने से कितना पहले लगाना है, कितना अमाउंट लगाना है, क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन, एंड रीअप्लाई क्यों जरूरी है, कब कब करना है, इस पर अगर आप थोड़ा बता दें। ओके, सो सनस्क्रीन हम जब चूज करते हैं, हम 2-3 चीजों के बारे में सोचते हैं। एक, उसका एसपीएफ सही होना चाहिए, जो मैंने बताया कि 30 to 50 एसपीएफ होना चाहिए। जब भी आप सनस्क्रीन
आप बाहर जाते, आप इवन पहली बात तो आप अगर इंडोर्स भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, बट स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं, फिर गोइंग आउटडोर्स, आपको सनस्क्रीन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पहले लगा लेना चाहिए। इतना टाइम लगता है सनस्क्रीन को आपकी स्किन में अपना काम चालू करने के लिए, तो वो प्रॉपर आपको प्रिवेंशन देगा यूवी रेडिएशन से। एंड इफ यू आर इनटू मार्केटिंग पर्पस, और आप अगर आपका आउटडोर काम लगातार है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एवरी 2 to 3 आवर्ली सनस्क्रीन को रिपीट कीजिए। एंड इफ यू आर एट इंडोर्स, देन ऑल्सो आपको अपना सनस्क्रीन एवरी 4 आवर्ली रिपीट करना है। आइडियली 2 फिंगर लेंथ रिकमेंडेशन होता है फॉर फेस एंड नेक, वो आपको यूज करना ही चाहिए। एंड रीएप्लीकेशन इज मस्ट। बिल्कुल। तो सनस्क्रीन लगाना, रोज लगाना विदाउट फेल, एंड कितना अप्लाई करना है, रीएप्लीकेशन, ये सब बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखें, और जो एक स्किन केयर रूटीन डॉक्टर ने बताया है, एक नॉर्मल क्लेंजर एज पर योर स्किन टाइप, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सनस्क्रीन, और मे बी बेड टाइम पे जो भी सीरम या कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। चलते चलते डॉक्टर, कोई टेक होम मैसेज, कोई डूज एंड डोंट्स एक्ने मैनेजमेंट को लेकर, कोई बात जो रह गई हो जो आप करना चाहें हमारे व्यूअर्स से? एक्ने एक, जैसे मैंने बताया, एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ती है। आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी बहुत ध्यान देना है। आपके डाइट और एक्सरसाइज, दे आर दी नॉन निगोशिएबल्स इन एनी स्किन ट्रीटमेंट, तो आपको वो भी एक टाइमली फॉलो करना है। जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो तो आपको यूज करना ही है। साथ साथ में आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ये हमेशा यूज करना है, जिसकी वजह से जो आप बैरियर जो आपका खराब हो रहा है एक्ने की वजह से, जो एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उनको डिले कर सकते हैं।